शिव। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ बृहस्पते अतियतयो आदयाद्युमन्विवादिगतो वञ्चनेको यद्धिदयच्छवसारितप्रजाततमासुरविनन्दे ब्रह्मानन्दं परमसुगतं केवलं ज्ञानमूर्तिं गद्वातीतं गगनसदृशं दत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। बैठिए अपने अपने जगह। आशीर्वाद। महादेव 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 महादेव। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शिवे भक्तिः शिवे भक्तिः शिवे भक्तिर्भवे भवे। अन्यथा शरणं नास्ति
त्वमेव शरणं मम त्वमेव शरणं मम गुरुरादिरनादिश्च गुरुः परमदैवतं गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः भावभावेश्वर महादेव भगवती पीताम्बरा मात ब्रह्मलीन श्री सद्गुरुदेव स्वामी अखंडानंद जी महाराज श्री शिव महापुराण की આજથી પ્રારંભ થવાની છે વિદ્યેશ્વર સંગીતા. આપણે એને બી જયકાર કરીએ. વિદ્યેશ્વર સંગીતા કી જય. નમઃ પાર્વતી પતયે. હરિ બોલ હરિ બોલ. आद्यन्तमङ्गलमजात समानभाव मार्यं तमीश मजरामरमात्मदेवं पञ्चाननं प्रबलपञ्चविनोदशीलं सम्भावये मनसि शङ्करमम्बिकेशं शङ्करमम्बिकेशम्. જે સૃષ્ટિના આદિમાં અંતમાં મંગલ સ્વરૂપ છે. પ્રાણી માત્રનું મંગલ કરવામાં જ લાગેલા છે. જેમની તુલના બ્રહ્માંડમાં કોઈની સાથે થઈ જ ન શકે. અને સંપૂર્ણ વિશ્વમાં બ્રહ્માંડમાં જે વિરાજમાન છે એવા પંચાનન દેવ અહીંયા ભગવાન શંકરના 5 મુખો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યા છે મંગલાચરણમાં. પંચાનનમ જે ભયંકર 5 ઉત્કટ મહાપાપો છે એ પાપોથી એ 5 મુખો બધાના જ રક્ષણ કરે છે, ત્રાણ આપે છે, રક્ષણ આપે છે. અને એ ભગવાનનું સ્વાભાવિક ગુણ છે. ભગવાન શિવ, ભગવાન આશુતોષ क्षमाशील देव છે. अगर कोई व्यक्ति दुष्कर्म કરવામાં પ્રવૃત્ત થયેલ છે અને એમની શરણાગતિ સ્વીકારી લે છે તો એનું પણ એ કલ્યાણ કરી દે છે. એવા સ્વયં પ્રકાશ પોતાના જ પ્રકાશથી જે પ્રકાશિત થઈ રહ્યા છે. અંબિકાનાથ એટલે પાર્વતીના પતિ ભગવાન શંકર
અમે મનમાં એમનું ધ્યાન કરીએ છીએ, એમને વંદન કરીએ છીએ. આ એનું મંગલાચરણ છે. વિદ્યેશ્વર સંગીતાનું આ મંગલાચરણ છે કે અમે ભગવાનનું ધ્યાન કરીએ છીએ. ભગવાન અંબિકેશ પાર્વતી સાથે વિરાજમાન ભગવાન શંકર. 2 મિનિટ માટે તમે લોકો પણ આ ધ્યાનની પ્રક્રિયામાંથી પસાર થશો તો તમને આનંદ મળશે. આંખ બંધ કરીને એકબીજાનો સ્પર્શ ન કરતા બેસો અને જુઓ ભગવાન ઉમાપતિ મહાદેવ, ઉમાશંકર કેવી રીતે વિરાજમાન છે આપણા હૃદયમાં. મૂર્તિ રૂપમાં તો બધા જ મંદિરોમાં હોય, પણ આપણા હૃદયમાં એમને સ્વીકારવાનું છે. महादेव प्रयाग तीर्थ क्षेत्रों में राजा माना जाते हैं, उसे महाक्षेत्र भी माना गया है. और जब जब भी महापुरुषों का एकत्रीकरण होता है, બધા ભેગા થાય છે એક સાથે, તો એમાં 2 ક્ષેત્રોની પ્રાધાન્યતા જોવા મળે છે. એક નૈમિષારણ્ય અને બીજું પ્રયાગરાજ. અહીંયા બધા સંતો ભેગા થયેલા છે, મહાભાગ્યશાળી પુણ્યાત્મા મહાત્માઓ. અને એમની પાસે જ જેમ મેં તમને કહ્યું હતું કે જ્યારે બી એ લોકો યજ્ઞાનુષ્ઠાન કરે છે તો ત્યાં સૂતજી મહારાજ આવી જ જાય છે. એ પધાર્યા છે અને એમને એ પ્રશ્ન બી કરે છે. અને પ્રશ્નમાં જે વાતો ગઈકાલે મેં તમને સંભળાવી એવી જ રીતે એ બધા પ્રશ્નો કરે છે. સંસારમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ નિષ્પાપ રહેતો નથી, તો આ પાપનું પ્રક્ષાલન કેવી રીતે થઈ શકે છે અને કેવી રીતે એ જીવ શિવથી જોડાઈ શકે છે, જીવને શિવ સાથે કેવી રીતે સંબંધ સ્થાપવાનો રહેશે, એના માટે લોકો પ્રશ્ન કરે છે. તાવત વિજૃંભતે પાપમ બ્રહ્મહત્યા પુરસ્સરમ યાવત શિવ પુરાણમ હિ નોદેશ્યતિ જગત્ય. સૂતજી મહારાજ એ લોકોના પ્રશ્નોનો જવાબ આપતા કહે છે, સંસારમાં અગર પાપની પ્રવૃત્તિ છે તો એની નિવૃત્તિ માટેનો ઉપાય પણ છે, અને ઉપાય છે શિવપુરાણની કથાનું શ્રવણ કરવાનું. ત્યાં સુધી જ ઉપદ્રવો છે, ત્યાં સુધી જ લડાઈ ઝઘડાઓ છે, જ્યાં સુધી શિવપુરાણનો આશ્રય નથી લેતા. ત્યાં સુધી જ બધા શાસ્ત્રોમાં વાદ વિવાદ છે, મંત્રોમાં વાદ વિવાદ છે, વક્તાઓમાં પણ મતભેદ થઈ શકે છે, જ્યાં સુધી શિવપુરાણનો ઉદય નહીં થયો હોય. શિવપુરાણના આવવાથી સર્વત્ર સંસારમાં સુખ શાંતિની અને સમૃદ્ધિની વાત થઈ શકે છે.
अस्य शैव पुराणस्य कीर्तन श्रवणात् द्विजाः फलम वक्तुं न शक्नोमि। આ જે શિવપુરાણ છે એનું કીર્તન કરવાથી, એના શ્રવણ કરવાથી એક શ્લોક અથવા અર્ધું શ્લોક પણ બોલવાથી જીવ પાપથી નિર્મુક્ત થઈને, વિનિર્મુક્ત થઈને, નિષ્પાપ બનીને ભગવાનની શરણાગતિ ગ્રહણ કરી શકે છે, સ્વીકારી શકે છે. એતत् શિવપુરાણમ યો નમસ્કુર્યાદ દૂરતઃ. કોઈ માણસ દૂરથી પણ શિવપુરાણને પ્રણામ કરી લેતું હોય એનું ફલ છે सर्वदेवार्चन फलम स प्राप्नोति न संशय. अगर दूर से भी कोई व्यक्ति शिव पुराण को प्रणाम कर लेता है तो उसका फल होता है उसके लिए नारायण सभी देवताओं की अर्चा पूजा करने का फल उसको सिद्ध हो जाता है. शिव पुराण के प्रत्येक अक्षर गायत्री मंत्र की तुलना रखते हैं और उसका कारण है स्वयं भगवान शिव ने उपनिषदों का तात्पर्य जब मंथन करके निकाला और उस मंथन से जो अमृत विद्या प्रकट हुई उस अमृत विद्या को उन्होंने कुमार के लिए दिया. कुमार उनका स्वयं का ही पुत्र है, उन्हें दिया. और कह सकते हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इन लोगों को भी इस विद्या की प्राप्ति हुई. यानी महादेव ने मंथन किया और इन लोगों को उस मंथन से निकले हुए अमृत को आवंटित किया. कुमार स्कंद तो उनके पुत्र ही हैं. पिता के द्वारा अगर पुत्र को संपत्ति प्राप्त होती है तो आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन यहाँ तो सभी को आवंटित किया गया. 3 चीज़ों से बचने की बात करते हुए कह रहे हैं नारायण. दुष्प्रतिग्रह, दुर्भोज्य, दुरालापादि संभवम. इन 3 चीज़ों से हर किसी को बचना चाहिए. कोई हमें देने के लिए आता है इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ लंबा कर दें और ले लें. वर्जित दान नहीं लेना चाहिए. जिस व्यक्ति का दान ग्राह्य नहीं होता है उस व्यक्ति से दान भी नहीं लेना चाहिए. क्योंकि द्रव्य भी सात्विक भी होता है, राजस भी होता है, तामस भी होता है. अगर द्रव्य शुद्ध होगा और वह शुद्ध द्रव्य अगर किसी अच्छे काम में लगेगा तो उसका परिणाम भी अच्छा आएगा. दुष्प्रतिग्रह. और दूसरी बात कहते हैं दुर्भोज्य. जहाँ नहीं खाना चाहिए वहाँ नहीं ही खाना चाहिए, चाहे कोई कितना ही प्रिय क्यों ना हो. वर्जित भोजन, वर्जित दान, वर्जित भोजन. वर्जित भोजन करने से भी नारायण मन के ऊपर बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है. यादृशम भक्षयेत अन्नम बुद्धिर्भवति तादृशी. जैसा खाए अन्न वैसा बने मन. खान पान में बहुत विवेक रखना चाहिए, विचार करना चाहिए कि कहाँ खाना चाहिए और कहाँ नहीं खाना चाहिए. समर्थ रामदास स्वामी की एक कथा आती है.
वो तो भिक्षा करके ही खाया करते थे। और वैसे भी भिक्षान्न में इतने दोष नहीं माने गए हैं। भिक्षाटन करने वाला व्यक्ति भिक्षा मांग के खाता है तो इतना दोष नहीं मानते उसको, लेकिन फिर भी अगर वह दूषित अन्न आया है तो प्रभाव उसका भी पड़ता है। समर्थ रामदास स्वामी एक ब्राह्मण के यहाँ भिक्षाम देही करने के लिए गए, भिक्षा मांगने के लिए गए। वो ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ, संपन्न भी था। उसने सत्कार पूर्वक कहा कि आप बैठिए, और मेरे यहाँ आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आप प्रसाद पाने के लिए आए। वो तो खड़े खड़े ही लेते, लेकिन उस दिन ब्राह्मण के आग्रह से बैठ गए। ब्राह्मण देवता ने भी चांदी का पाटला लगाया, चांदी के बर्तन लाया, सब पवित्रता पूर्वक भोजन बनवा करके और उनको जिमाया। समर्थ भी देखते रहे बैठे बैठे कि क्या हो रहा है। ठीक है, प्रारब्धवशात मिल रहा है तो खाओ। अब खाया, खाते खाते उनकी वृत्ति देखिए क्या बनती है। समर्थ रामदास स्वामी अपने गले में एक झोला लटका के चलते हैं। उनके गले में हमेशा एक झोला होता है। उन्होंने वो बर्तन उठाए और अपने झोले में डाल लिए। भोजन होने के बाद जूठे ही बर्तन ऐसे ही उठा के और झोले में डाल लिए। वो ब्राह्मण कुछ बोल नहीं सका, क्योंकि वो जानता था कि ये महापुरुष हैं, कोई लीला है इनकी, मैं टोकूंगा तो अच्छा नहीं होगा। नहीं तो बोल सकता था कि महाराज कुठे चाल ले घेऊन, ये सब उठा के किधर चले, बोल सकता था आज का कोई व्यक्ति होता तो। लेकिन वो संस्कारी था, जानता था महापुरुष को, नहीं कुछ बोला। लेकर के और वो निकल गए। दूसरे दिन सवेरे स्नान संध्यादि कृत्यों से निवृत्त होकर के और भगवत भजन करके उठे और वापस भिक्षा मांगने के लिए निकले तो झोला उठाया और कंधे के ऊपर झोला टांगा तो उसमें बर्तन बजे, खड़खड़ आवाज आई। तो जब ये खड़खड़ आवाज आई और सुना उन्होंने, तो एकदम विचार में पड़ गए कि ये क्या आवाज आ रही है। देखा तो उसमें चांदी के बर्तन थे। ओह, ये चांदीचे पात्र मी कुठून घेऊन आले, ये मैं कहाँ से लेकर के आ गया हूँ। एकदम ध्यान किया, अरे वो ब्राह्मण के घर भोजन करने गए थे कल, उसी के यहाँ से उठा लाया, तो मेरी ये वृत्ति हुई क्यों। सीधे उस ब्राह्मण के घर गए और जाकर के उस ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण भी विचार में पड़ गया कि एकदम आए हैं, पता नहीं क्या हुआ है। प्रणाम किया, महाराज कोई भूल हुई है। बोला पहले तुम ये बताओ कि कल जो भोजन प्रसाद मुझे तुमने करवाया वो अन्न कहाँ से आया था, वो सीधा कहाँ से आया था। ब्राह्मणों के घर में सीधा दे के जाते हैं लोग। सीधा का मतलब समझते हो ना तुम लोग, भोजन सामग्री जो दी जाती है, आटा दाल चावल वगैरह, उसको सीधा बोलते हैं। नाम तो इसका सीधा है बच्चों, लेकिन ये होता बहुत टेढ़ा है। नाम सीधा है लेकिन बहुत टेढ़ा होता है, हजम नहीं होता है जल्दी। हमारे शिवानंद जी महाराज बूढ़े बाबा जो नासिक में थे, वो तो ये कहा करते थे मेरे से, बेटा ये जो अन्न है ना, ये लोहे का चना है, इसको हजम करने के लिए सेवा और खूब भजन भक्ति जब करेंगे तो ही हजम होगा। कहाँ से आया था ये अन्न। तो उस ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से पूछा, कुठून आले होते। मला तो माहिती नहोती, मेरे को पता नहीं, मैं पूछता हूँ पत्नी से। पत्नी से पूछा, पत्नी ने जवाब दिया वो सुनार के यहाँ से आया था, स्वर्णकार के यहाँ से।
पड़ोस में जो सोनी लोग रहते हैं उनके यहाँ से आया था। अब सोनियों के लिए एक कहावत है, ऐसी चलती है, प्रचलित ही है, कि वो माता का भी आभूषण बनाता है तो उसमें से थोड़ा बहुत सोना निकाल लेता है। एक टेव है, आदत पड़ी हुई होती है। समर्थ रामदास स्वामी ने वो बर्तन निकाल के उसको दिए कि वो कल तेरा वो जो सीधा का भोजन खाया ना, उसका परिणाम ये हुआ कि मैं तेरे बर्तन उठा के ले गया, ले ले तेरे बर्तन संभाल। आप कल्पना कीजिए कि समर्थ रामदास स्वामी जैसे व्यक्ति के ऊपर अन्न प्रभाव कर सकता है, तो फिर आपके ऊपर कितना प्रभाव करेगा, हम पर कितना प्रभाव करेगा, लोगों पर कितना प्रभाव करेगा। इसलिए बहुत सारे लोग दान का अन्न खाने से बचना चाहते हैं। दुर्भोज्यम, अन्न ग्रहण करने से पहले विचार करना ही चाहिए। और देखो, जब अन्न तुम ग्रहण भी करो, किन्हीं धर्म स्थानों में जाने पर, गुरुस्थान की बात छोड़ करके करता हूँ, अन्यथा कहीं भी जाते हो, बल्कि मैं तो कहूँगा गुरुस्थान में भी प्रसाद पाओ तो बोल करके ही पाओ, हे देव, ये अन्न जो हम भक्षण कर रहे हैं उसकी पवित्रता की जवाबदारी आपकी है। हमारी बुद्धि के ऊपर इसके विकार नहीं आने चाहिए। मैं हिंदी में इसलिए बोल गया कि तुम समझ जाओ, बाकी बोलना चाहिए। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाम अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णु भोक्ता देवो महेश्वर एवं ध्यात्वा च यो भुंक्ते अन्न दोषो न विद्यते। वो अन्न में रहा हुआ जो दोष है वो कब निकलेगा? जब तुम ये बोलोगे। बोलो, अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णु भोक्ता देवो महेश्वर है। अब उसमें अपनी कोई जवाबदारी नहीं रही ना। अन्नम ब्रह्मा ब्रह्मार्पणम ब्रह्म भी हो गया, अन्न ब्रह्मा का स्वरूप हो गया, उसमें रहा हुआ जो रस है वो विष्णु हो गए, और इसका उपभोग कौन कर रहा है? तो महेश्वर कर रहे हैं। अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णु, बोलो। और हम तो कहेंगे आप अपने घर में भी जब प्रसाद पाते हैं ना रोज, तो इस तरह से हाथ में जल लेकर के घुमा दिया करो और ये मंत्र बोल लिया करो। तो इससे आपका जो अन्न है, अगर उसमें कोई दोष रहा भी होगा तो वो निकल जाएगा, वो दुर्भोज्य नहीं रहेगा। अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णु भोक्ता देवो महेश्वर एवं ध्यात्वा च यो भुंक्ते अन्न दोषो न विद्यते। समझ में आई बात? तो ऐसा बोला करो। और नई संस्कृत में बोल सकते हो तो हिंदी में, जैसे मैंने कहा कि ये देव, ये आपका उत्तरदायित्व है, हम इस अन्न को भक्षण कर रहे हैं, आप हमारा रक्षण कीजिएगा। तीसरी बात, दुरालाप। पहली बात तो बताई हमने आपको, वर्जित दान। दूसरी बात बताई वर्जित भोजन। और अब तीसरी बात करते हैं वर्जित आलाप। दुरालाप है। वर्जित आलाप का मतलब होता है बच्चों, जो न बातें करनी चाहिए ऐसी बातें करना। जिन वार्ताओं को करने से आपका समय नष्ट हो, दूसरे का समय नष्ट हो,
समय नष्ट होने से भी ज़्यादा आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो, आपका अंतःकरण अपवित्र हो, अरे चीज़ दूसरे की और बात करके हम अपना अंतःकरण खराब करें, काहे को भैया। इसलिए दुरालाप है, दूसरों की व्यर्थ चर्चाओं को कभी भी महत्व नहीं देना चाहिए, न सुनने का ही प्रयास करना चाहिए। और अगर कहीं कोई ऐसी चीज़ें हो रही है, ज़बरदस्ती कोई बोलता ही जा रहा है, तो उठ के चले जाना चाहिए। आपको ये कथा स्मरण होगी, महाभारत देखा था जिस समय महाभारत टीवी पे आ रहा था, उस समय जिस समय भगवान श्री कृष्ण की शिशुपाल निंदा करने लगा था, बहुत सारे राजा लोग सभा में से उठ कर के चले गए थे। क्यों? कि भगवान की निंदा हम नहीं सुनना चाहते। वैसे ही भगवत निंदा की तरह ही गुरु निंदा, भगवत भक्तों की निंदा, सज्जन पुरुषों की निंदा क्यों व्यर्थ में सुन करके और हम अपने अंतःकरण को दूषित करें। इसलिए यहाँ कह रहे हैं, दुष्प्रतिग्रह दुर्भोज्य दुरालापादि संभवम, इन सब से बचने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर कभी चलते चलते जैसे निकल रहे हैं और कोई बोल रहा है, कान में शब्द चले गए, जैसे मैंने नहीं कहा था गाड़ी में बैठे हैं और मेंढक आ गया, अब तुम कहो कि नहीं तो चलाने वाले ने मारा, हमने थोड़ी मारा, ऐसा थोड़ी चलेगा। बैठे तो तुम भी थे, देख तो तुम भी रहे थे। अब कोई बातें कर रहा है और नहीं इच्छा हमारी सुनने की, लेकिन हम वहाँ से निकल रहे हैं और शब्द कान में पड़ गए, तो क्या? तब ऐसे पापों को निवृत्त करने के लिए कीर्तनेन संगीता सा विनाशयित, ये जो विद्येश्वर संगीता है, इसका श्रवण करने से इन पापों से हम अपनी रक्षा कर सकते हैं, या भगवत नाम संकीर्तन से हम अपनी रक्षा करते हैं। क्योंकि भगवान में तो बहुत बड़ी शक्ति है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान अनंत शक्ति संपन्न है, भगवान के नाम अनंत है, भगवान के गुण अनंत हैं। उन अनंत नाम और गुणों का कीर्तन, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, इस तरह से भगवत नाम का संकीर्तन, चाहे तो इस संगीता का पाठ, शिवालये बिल्ववने संगीताम ताम पठेत्तु यह स तत्फलमवाप्नोति तद्वाचोपि न गोचरे। किसी शिवालय में बैठ करके अथवा बिल्व वृक्ष के नीचे बैठ करके अगर हम विद्येश्वर संगीता का पाठ भी कर लेते हैं या भगवत नाम संकीर्तन कर लेते हैं, तो हमारे इन पापों से हमारा अंतःकरण बच जाएगा, निवृत्त होगा, शुद्ध होगा।
अब अपने तो हैं इस मामले में भाग्यशाली। कौन है? अपने बोलते हैं ना ऊपर वाला कृपा करेगा, तो ऊपर कौन है? ऊपर वाला बैठा है कि नहीं बैठा है? शिवालय है कि नहीं? तो आपका कीर्तन कहाँ चल रहा है हीरा भाई? शिवालय में चल रहा है। शिवालय में बैठ के कीर्तन करिए, चाहे तो बिल्व वृक्ष के नीचे। बिल्व का पेड़ अगर अपने घर में हो लगा हुआ तो उसके ऊपर भी ओटला बना लीजिए, वहाँ बैठ कर के भी भगवत नाम संकीर्तन करने से आपको बहुत बड़ा फल मिलेगा। देखो, बिल्व वृक्ष के नीचे पाठ करने से या नाम संकीर्तन करने से पाप निवृत्ति तो होती ही होती है, आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और आप में श्री संपन्नता भी आएगी, ऐश्वर्य भी आएगा। ऐसे इस विद्येश्वर संगीता का महात्म्य है, जिसमें 24,000 श्लोक हैं इस शिव पुराण में। विद्येश्वर संगीता 25 अध्यायों के अंदर वर्णित है। उसमें प्रथम अध्याय की बात मैंने आपको बताई, द्वितीय अध्याय की बात बताई। अब तृतीय अध्याय के अंदर साध्य साधन का विचार करते हुए पूछ रहे हैं। स्वयं व्यास जी महाराज प्रसन्नता पूर्वक कह रहे हैं, इत्याकर्ण्य वचस सौतम प्रोचुस्ते परमर्शयः वेदांत सार सर्वस्वम पुराणम श्रावयाद्भुतम। सूत जी के द्वारा शौनकादिक ऋषियों को जब ये बातें बताई गई तो बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के वेदांत सार सर्वस्वम, ये जो शिव पुराण है ये वेदांत का सार है। देखो, सभी देवता हैं, बहुत अच्छे हैं और सभी का सम्मान अपने तो करते ही हैं, अपने पंचदेवोपासक हैं, लेकिन महादेव की बात ही अलग है। वेदांत सार सर्वस्वम, वेदांत सार सर्वस्व शिव पुराण की कथा का श्रवण करना चाहते हैं। सूत ने कहा, यत्र गीतम त्रिकम प्रीत्या भक्ति ज्ञान विरागकम वेदांत वेद्यम तद वस्तु विशेषेण प्रवर्णितम। पूर्व काल में भी इसकी चर्चा हुई है और वर्तमान में भी आप लोग मुझसे प्रश्न कर रहे हैं। मैं आपको जवाब देते हुए कह रहा हूँ, भक्ति ज्ञान और वैराग्य इन तीनों के द्वारा प्राप्तव्य अगर कोई वस्तु विशेष है तो वो भगवान शिव है। पूर्व काल में ऋषि लोगों ने बैठ के ब्रह्म तत्व की चर्चा करना चाहा, निर्णय नहीं ले पा रहे थे। हम किसे ब्रह्म कहें, किसको जगत कहें, जगत जड़ है या चेतन है, जीव चैतन्य है या ब्रह्म स्वरूप है, इसका निर्णय नहीं कर पा रहे थे ये लोग। तब ये सभी ऋषि ब्रह्मा जी महाराज के पास में गए और ब्रह्मा जी से जाकर के कहा, कह पुमान सर्व तत्वेभ्य पुराण परतः परः। हे पितामह, आप ये बतलाइए, सर्वश्रेष्ठ तत्व एवं पंच महाभूतों को निर्माण करने वाला विशिष्ट तत्व और उससे उत्पन्न हुआ ये जगत तत्व, हम किसे श्रेष्ठ माने? क्योंकि हमारी दृष्टि में ये हो रहा है, ये ब्रह्म नहीं हो सकता, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। तो आप हमें कृपा करके बतलाइए, आप ही जगत के विधाता हैं, सभी कारणों के कारण हैं। आप कृपा करके ये बतलाइए, पंच महाभूतोत्पन्न वह कौन पुरुष तत्व है, कौन पुरातन तत्व है,
और सबसे अतीत परे है, जिसकी हमें आराधना करनी चाहिए। तब ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह यस्मात् सर्वमिदं ब्रह्म विष्णु रुद्रेंद्र पूर्वकम। जो मन तथा वाक्य के अगोचर है, जिनसे समस्त इंद्रियां, आकाश आदि पंचमहाभूत या ब्रह्मा विष्णु रुद्र तथा इंद्रादि देवता, ये सारा चराचर जगत प्रकट हुआ है, समुद्भूत हुआ है, एष देवो महादेव है, वही देव एकमात्र महादेव है, सर्वज्ञो जगदीश्वर है, वही सर्वज्ञ हैं और वही जगत के ईश्वर हैं। अयम तो परया भक्त्या दृश्यते नान्यथा क्वचित। और अगर तुम उन्हें प्राप्त करना चाहते हो तो मात्र और मात्र श्रेष्ठ भक्ति का आश्रय लो, परा भक्ति का आश्रय लो, निश्चित रूप से तुम्हारे को भी उसका साक्षात्कार होगा। ऐसे देव महादेव है, अर्थात वो देव केवल और केवल भगवान शिव है, महादेव है, जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है। उन ऋषियों ने कहा, अथ किम परमं साध्यम किम वा तत्साधनम परम साधकः कीदृशस्तत्र तदिदं ब्रूहि तत्वतः। आप कृपा करके हमें ये बताइए कि साध्य किसको समझा जाए और उस साध्य की प्राप्ति का साधन क्या हो सकता है और वो साधक किस तरह का होना चाहिए, आप वो भी हमारे को उल्लेख कीजिए, बतलाइए। तब ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, साध्यम शिवपद प्राप्ति ही। संसार में अगर कोई साध्य वस्तु है तो वह है शिव पद की प्राप्ति, अर्थात कल्याण की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, तुम जितने भी बैठे हो, हम सब जितने भी लोग संसार में हैं, आनंद के अलावा जी भी तो नहीं सकते हैं ना। हर कोई व्यक्ति यही तो चाहता है कि हमारा अच्छा हो, हमारा भला हो, हमारा कल्याण हो, यही तो चाहता है। कौन चाहता है कि हम दुखी रहें, हम अशांत रहें, हम उद्विग्न रहें? बोलो, चाहते हो? तो साध्य क्या है? ब्रह्मा जी महाराज बोल रहे हैं इस बात को, है नारायण। साध्यम शिव पदम, साध्य है शिव पद की प्राप्ति, और साधनम तस्य सेवनम, और साधन क्या है तो उसकी सेवा। और साधक तत्प्रसादाद्यो नित्यादि फल निष्प्रिय है। और साधक उसे बतलाया गया है यहाँ पर, नित्य नैमित्तिक कर्म करते हुए जो भी फलावाप्ति होती है, फल प्राप्ति होती है, उस फल को हम भगवान के चरणों में समर्पित कर दें निष्काम भाव से, कि उस पर हमारा अधिकार नहीं, हमने परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया। कर्म कृत्वा तु वेदोक्तम तदर्पितम महाफलम परमेश पद प्राप्ति सालोक्यादि क्रमात्। आपने कर्म किया, देखिए फिर एक बार समझा रहा हूँ, बात को समझना। साध्य क्या है? शिव पद की प्राप्ति। बोलो, साध्य क्या है? साध्य का मतलब हमको सिद्ध क्या करना है, हमारे जीवन में हमको प्राप्त क्या करना है। तो क्या प्राप्त करना है? शिव पद। अब शिव पद का मतलब ये नहीं कि हम महादेव बन जाएंगे। यहाँ शिव का अर्थ कीजिए, हम कल्याण को प्राप्त करना चाहते हैं। किसको? हाँ, शिवी कल्याणे धातु से शिव शब्द बनता है, या आनंद की प्राप्ति को कह सकते हो कि हम आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। संसार में कोई भी तो ऐसा नहीं कि जो दुखी रहना चाहता है, आनंद तो सबको चाहिए। तो साध्य क्या है? कल्याण। साध्य क्या है? आनंद की प्राप्ति। साध्य क्या है? शिव पद की प्राप्ति। और साधन क्या है? तत्सेवनम, उस शिव पद की सेवा करना, परमात्मा की
अच्छा देखो, ये तो सीधी सी बात है ना, तुम आओ बैठो और मेरे पैर दबाना शुरू कर दो। वैसे मैं तुम्हारी तरफ देखूं कि न देखूं? अब बूढ़ा हूँ, पैर में दर्द होता है, दुखता है, और तुमको हो गया कि चलो गुरुजी के चरण दबा लें। हालांकि दबाते नहीं हो तुम, लेकिन फिर भी बोलता हूँ दबा लो। अब तुम दबाओ, बाजू वाले की तरफ देखूं कि नहीं, दबाने वाले की तरफ देखा जाएगा कि नहीं? भाई देख, मेरी सेवा कर रहा है ना। ठीक वैसे ही हम जब परमात्मा की प्राप्ति के लिए, शिव पद की प्राप्ति के लिए जाना चाहें, तो हमको शिव की सेवा करनी चाहिए ना। माता पिता गुरुजनों की जिस तरह हम सेवा करते हैं, उससे भी अधिक श्रेष्ठ उस कल्याणकारी पद की प्राप्ति के लिए सेवा करनी चाहिए। यानी जो उनको प्रिय हो वो कार्य हमको करना चाहिए। अब शिव को प्रिय क्या है? अभिषेक। मैं नहीं मानता हूं कि जो लोग भांग धतूरे के भजन गाया करते हैं कि भांग चढ़ाओ और धतूरे चढ़ाओ, काहे भैया? महादेव के नसीब में यही रह गया क्या? इन व्यसनों की तो बड़ी निंदा हुई है अपने यहाँ पर। महादेव कोई व्यसनी नहीं है। महादेव तो सबको निर्व्यसन बनाने वाले देवता हैं। पृथ्वी के ऊपर एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनके लिए कहा रहा है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, एष देवो महादेव सर्वज्ञो जगदीश्वर है। मात्र और मात्र महादेव ही सर्वज्ञ और जगदीश्वर हैं। ये ब्रह्मा जी की उक्ति है, कोई सामान्य व्यक्ति की नहीं। तब साध्य है शिव तत्व और साधन है उनकी सेवा। और जो शिव को उनकी अभिलाषा के अनुसार, जलधारा प्रिय शिव है, भगवान शिव को तो और कुछ चाहिए नहीं भैया, एक लोटा पानी लेके जाओ और माथे पर चढ़ा दो, उसी से वो प्रसन्न है। और साधक कौन? जो सेवा की जा रही है उससे जो फल प्राप्त होने वाला है, उस फल को अपने लिए उपभोग न करके और अपने साध्य के चरणों में समर्पित कर देता हो अथवा संसार में आवंटित कर देता हो, वही तो निष्काम कर्म होता है। उसी का नाम निष्काम कर्म है। अच्छा, इस निष्काम कर्म के महत्व को प्रायण लोग जल्दी से गले नहीं उतारते, सुनते तो हैं बड़े प्रेम से, बाकी कहेंगे यज्ञ हमने किया और यज्ञ का फल प्राप्त होने का टाइम आए तब हम कहते हैं कि साहब नहीं, ये तो तुम ले जाओ, हम नहीं लेंगे। तो 5 दिन तक हमने तो स्वाहा स्वाहा करके आँखियाँ अपनी खराब किया, बैठे रहे ब्राह्मणों के पास में, जैसे उठाया बैठाया, उठते बैठते रहे, और जब फल प्राप्ति का टाइम आया तो हम कहते हैं कि नहीं, हमको नहीं चाहिए, तुम लोग ले लो। तो ऐसा कोई करता नहीं है ना, वो नहीं करता, उसकी नासमझी है। अगर वो परमात्मा के चरणों में समर्पित करता है अपने किए हुए कर्मों को, तो भगवान तो ऐसे नहीं है कि वो राम नाम जपना और पराया माल अपना। ये तुम संसारियों का नियम है। संसारी जीव ऐसा करेगा कि राम नाम जपना और पराया माल अपना। भगवान तो तुम्हारे दिए हुए उस फल को इतना विलक्षण बना देंगे और इतना महत्वपूर्ण बना देंगे कि तुम भी देखते ही रह जाओगे, और तुम्हारा अंतःकरण पवित्र होगा। पवित्र अंतःकरण में ही भगवान का वास होगा, भगवान आकर के विराजमान होंगे। कर्म कृत्वा तु वेदोक्तम तदर्पित महाफलम। हम कर्म करें, वेदोक्त कर्म करें, और उसका जो महाफल प्राप्त हो परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दें। और उससे क्या होगा? तो सालोक्यादि क्रमात्
सालोक्य, सायुज्य, सामीप्य, ये जो मुक्तियों का क्रम है वो एक एक करके आपको प्राप्त होने लगेगी। समझ में आई बात? साध्य कौन? शिव पद प्राप्ति। बोलो। साधन क्या? सेवा। और सेवा का मतलब अपने साध्य को जो प्रिय हो तदनुरूप चेष्टा, तदनुरूप कार्य करने की भावना। और तीसरा बोलो, साधक कैसा होना चाहिए कि कर्म तो करे लेकिन निष्काम भाव से करे, आवंटित कर दे लोगों के लिए, समाज के लिए, भगवान के लिए, तो उसका महत् फल मिलेगा, महत् फल मिलेगा। संक्षिप्य तत्र वह सारम साधनम प्रब्रवीम्यहम श्रोत्रेण श्रवणम तस्य वचसा कीर्तनम तथा मनसा मननम। अब तीन बातों की ओर ध्यान खींच रहे हैं। जैसे तीन बातें आपको मैंने बताई अभी, साध्य, साधन और साधक, वैसे ही इन तीन बातों की ओर ध्यान खींच रहे हैं। भगवान के सौंदर्य माधुर्य परिपूर्ण श्री विग्रह का श्रवण करना। देखो, अपने लोग साक्षात तो दर्शन नहीं कर पाते हैं और नहीं हुए हैं, ऐसा मानते भी हैं, जबकि रोज करते हैं दर्शन, फिर भी ऐसा मान लेते हैं कि हमको दर्शन नहीं हुआ है। दाखला दूं? ऊपर गए थे मंदिर में, बोलो किस लिए गए थे? फिर कैसे कहते हो कि दर्शन नहीं हुए? क्या करने गए थे भाई? दर्शन करने ही तो गए थे ना, फिर कैसे बोलते हो कि दर्शन नहीं हुए? दर्शन रोज होते हैं। कैसे कह दूं कि मुलाकात नहीं होती है, रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती है। रोज जाते हैं, रोज सामने खड़े रहते हैं, लेकिन बात नहीं होती है, क्योंकि तुम करना ही नहीं चाहते हो। दूसरी बातों के अंदर तुम्हारा मन लगा रहता है, उससे करो ना जाकर के बात। वो सुनता है, वो सुनने के लिए ही तो बैठा हुआ है। उसके सौंदर्य माधुर्य का श्रवण करने से ही हमारे हृदय में प्रीति जागृत होती है। देखो, ये कथा नहीं सुनाए हम आप लोगों को, चाहे वो राम कथा हो, कृष्ण कथा हो, शिव कथा हो, इसके बिना प्रेम कैसे जगेगा भगवान के लिए? सुनने से ही तो प्रीति होती है ना। तो उनके सौंदर्य माधुर्य का श्रवण, फिर जो हमने श्रवण किया है उसका कीर्तन। शिव शिव शंकर हर हर महादेव, शिव शिव शंकर हर हर महादेव, हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव, हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, ये कीर्तन किया आपने। मंतव्यश्च महेश्वर है, और महेश्वर का ही मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। श्रवण में बड़ी ताकत होती है नारायण, इसलिए आप देखिए उपनिषदों में बार बार आएगा, आत्मावारी द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य है। अगर तुम आत्म साक्षात्कार करना चाहते हो, अगर तुम आत्मदर्शन करना चाहते हो, तो क्या करना चाहिए? श्रोतव्य है, यानी
श्रवण करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। नवदा भक्ति में भी देखोगे तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, सबसे पहली श्रवण भक्ति आती है, श्रवण करना चाहिए। श्रवण में बहुत बड़ी ताकत है। श्रुत्वा धर्म विजानाति, बोलो तो ये श्लोक याद कर लो, बड़ा प्यारा श्लोक है। श्रुत्वा धर्म विजानाति, एक सेंटेंस पहले याद रख लो। श्रुत्वा धर्म विजानाति, बोलो। श्रुत्वा त्यजति दुर्मतिम, श्रुत्वा त्यजति दुर्मतिम। बड़ा सीधा श्लोक है, देखो अगर तुम चाहो तो याद कर सकते हो, और इसका अर्थ भी बहुत सीधा सीधा है। श्रुत्वा धर्म विजानाति, बोलो। यानी आप श्रवण करके और धर्म का बोध सिद्ध कर सकते हैं, धर्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, आप धर्मात्मा हो सकते हैं। अगर श्रवण ही नहीं करोगे, आप श्रवण में प्रवृत्ति ही नहीं होगी आपकी, तो आप कैसे जान पाएंगे? कर्तव्य अकर्तव्य का बोध श्रुति से ही होता है। श्रुति यानी ये कान, श्रवण करने से ही। धर्माधर्म का बोध श्रुति से ही होता है, श्रवण से ही होता है। कर्तव्य अकर्तव्य का बोध श्रवण करने से ही होता है। और वो भी महापुरुषों के पास में आओगे, सत्संग में आओगे तब। वो दुराल आपे वाली बात अभी मैंने बताई थी, 3 बातें अच्छी नहीं होती हैं। वर्जित दान, वर्जित भोजन और वर्जित आलाप। वर्जित आलाप यानी फालतू की बातें। अभी तो सिखाया, अभी तो याद तो रखा करो यारो। कोई तुम तो मेरे ही कोई वापस दे के जाओगे क्या? कुछ तो साथ भी ले जाया करो। हाँ, जैसे उन 3 बातों के लिए सावधान किया, वैसे यहाँ 3 बातों का संविधान करते हुए कह रहे हैं। श्रोतव्य है, कीर्तितव्य है और मंतव्य महेश्वर है। महेश्वर का श्रवण करो, महेश्वर का कीर्तन करो और महेश्वर का ही मनन करो। तो श्रवण करो, श्रवणम बड़ी ताकत रखता है। श्रुत्वा धर्म विजानाति, बोलो। तुमको एक दाखला देता हूँ जिससे बहुत जल्दी बात समझ में आएगी। बढ़िया। एक गांव में संतों की मंडली आई हुई थी, संत लोग आए थे, इसलिए वहाँ सत्संग का आयोजन चल रहा था। एक व्यापारी था करियाना का, उम्र भी हो रही थी, बड़ा हो गया था, मतलब प्रौढ़ हो गया था। तो लगा कि चलो अपने कथा सुनना चाहिए, अच्छा है, महात्मा लोग आए। वो कथा सुनने के लिए जाता था, लेकिन अपने लड़के को बोल के जाता था कि तुम दुकान संभालना, तुम दुकान संभालना, और कोई बड़ा ग्राहक आ जाए तो मेरे को बुला लेना। बड़ा ग्राहक आ जाए तो मेरे को बुला लेना, छोटे मोटे को तुम पटा लेना, लेकिन कोई बड़ा आ जाए तो मुझे बुला लेना। ऐसा कहकर के अपने बालक को, अपने लड़के को दुकान पे बैठा देता और खुद चले जाता कथा सुनने के लिए। अब एक दिन कोई बड़ा ग्राहक आ गया भैया। तो जब बड़ा ग्राहक आ गया तो सोचा कि अब चलो मैं पिताजी को बुला के ले आता हूँ। तो लड़का बोला कि आप ठहरो, मैं आता हूँ, मेरे पिताजी को वो कथा सुनने गए, वहाँ से बुला के लाता हूँ। तो दौड़ता हुआ गया। જ્યારે તે કથામાં પહોંચ્યો ને તો પેલા વિદ્વાન जो
મહાપુરુષ હતા, એ કહી રહ્યા હતા, ક્યારેય પણ તમે વૈશ્યવૃત્તિને અપનાવવાવાળા જે વૈશ્ય વર્ગના લોકો છો, ગાય આવી જાય, કોઈ ઢોર આવી જાય અને કંઈ ખાતો હોય, ગાય કંઈ ચરતી હોય તો એને ત્યાંથી ભગાડવાની નહીં, ભગાડવું નહીં જોઈએ, દોષ લાગશે એમાં. એ ખાતી હોય, ચરતી હોય તો ભગાડવાથી દોષ લાગશે. કોઈ જીવ હિંસા કરી રહ્યો હોય તો આપણે એને હિંસાથી બચાવવાનો પ્રયત્ન કરવું જોઈએ. આ તમારો માનવ ધર્મ છે, તમારો કર્તવ્ય છે. विद्वान पुरुष भी कथा संभळावी રહ્યા હતા. इतने में ही उसने जाके कहा, पप्पा पप्पा मोटो ग्राहक આવ્યો છે. તો પેલો પપ્પો તો ઊભો થઈ ગયો. એને મહાત્માજીના પ્રવચનથી કંઈ લેવા દેવા થોડી હતા. એ તો ઊભો થઈ ગયો. બોલા હા ચાલ. બોલા ને પપ્પા તમે ચાલો જરા, હું થોડો ઓર સાંભળીને આવું છું. એ ગાંડો થઈ ગયો, તારું કામ નથી સાંભળવાનું, ચાલ तुम्हारे साथ ही चाल. तुम पागल हो गया, तुम सुनेगा? ये कोई तुम्हारी उम्र है सुनने की? ये तो हमारे जैसे लोगों की उम्र है सुनने की. कितना ही पानी डालो हमारे ऊपर, कुछ फर्क पड़ने वाला, हाँ कितना ही सुन ले कोई फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ने. એટલે તો આપણે સાંભળવા આવીએ છીએ એવું. चलो हमारे साथ वापस. अब उसका बाप बेचारे को लेके आ गया वापस. जब लेके आया तो देखा वहाँ के ऊपर गाय जो अनाज का कोथला पड़ा हुआ था उसके अंदर मुंह डाल के खा रही थी. तो बाप ने कहा, ए मूर्ख तेरे को दिखाई नहीं देता? वो गाय खा रही है और तू उसको भगा नहीं रहा है. पप्पा हमણાં જ તો તમે સાંભળીને આવ્યા છો, अभी तो आप सुन के आए हो कि गाय खा रही होती तो उसको भगाना नहीं चाहिए, और तुम मुझसे कह रहे हो कि गाय को भगा दो. अरे मूर्ख, वो सुनने की बात अलग होती है, करने की बात. उसने कहा नहीं पिताजी ऐसा नहीं होना चाहिए, जो सुना उसको करना भी चाहिए, नहीं तो अपयश हो जाएगा संसार में. अरे तेरे अपयश की ऐसी की तैसी. उसने सोटा उठाया और गाय को भगा दिया वहाँ से. बड़ा विचित्र लगा लड़के को. अभी तो कथा सुन के आया था बाप, फिर ये क्या सुनने को जाता है? पिताजी आपने अच्छा नहीं किया. ये बालक ने विरोध प्रकट कर दिया अपना. बोला तेरे को अच्छा नहीं लगता तो चल चले जा, तू मेरी दुकान में से निकल बाहर, यहाँ नहीं रहना. ऐसे कोई खिलाने के लिए होता है? बोला अगर आप मानते नहीं हैं तो फिर सुनने क्यों जाते हैं? क्योंकि वो कच्चा घड़ा था ना, उसके ऊपर कोई लिखावट नहीं हुई थी अभी तक. आज पहली लिखावट हुई थी और वो एकदम लिख गई यहाँ के ऊपर. उसे बहुत बुरा लगा. उसने अपने बाप से कहा आप ठीक नहीं कर रहे, तू मेरा गुरु है जो मेरे को बता रहा है क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है, निकल बाहर यहाँ से. कोई बात नहीं पिताजी, आप निकाल रहे हैं तो मैं निकल जाऊँगा. वो लड़का घर से दुकान से निकल गया और बेचारा जा रहा था, जंगल में जा रहा था. थोड़ी दूर आगे गया तो वहाँ एक सांप जो है ना मेंढक को पकड़ के और अपना खाने की तैयारी कर रहा था. अब उसने देखा कि देखो महात्मा जी ने कहा था कि कोई हिंसा कर रहा हो तो उसको बचाने की कोशिश
करना चाहिए। भोला हृदय था, वो डंडा लेके भी फेंक सकता था, पत्थरा भी फेंक सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं किया। वो गया उस सांप के पास में और उससे बोलता है भैया इसको छोड़ देना। अब ऐसे सांप भैया कहने से छोड़ देगा उसको? लेकिन देखिए संयोग, वो इच्छाधारी नाग था और उसने कहा मैं इसको छोड़ दूंगा अगर तू कहेगा तो, लेकिन मेरे को भूख लगी है, कई दिन से खुराक नहीं मिली है, जितना इस मेंढक के अंदर वजन है उतना मांस तू अपने शरीर से निकाल के खिलाएगा मेरे को? बोला हाँ खिलाऊंगा। तो उसने मेंढक को छोड़ दिया। तब उस लड़के ने नारायण अपनी जंघा यहाँ से मांस निकाला और वो सांप के सामने रख दिया, नाग के सामने, कि लो तुम खा लो। खुद पट्टा वट्टा बांध के बेचारा वहाँ से लंगड़ाते लंगड़ाते आगे चला, क्योंकि वापस तो जा नहीं सकता था। कथा तो सुन के ऐसी आया था कि बाप ने ही निकाल दिया, और अब पट्टा बंधा के जाऊंगा तो और भी डांटेगा कि क्या करके आया है। चलना तो आगे ही पड़ेगा, इसलिए देखो वो आगे जा रहा है, आगे चले जा रहा है। पैर में तकलीफ भी हो रही है क्योंकि वो मांस निकाला नहीं, यहाँ से काटा तो खून भी निकल रहा था, परेशान भी था। कभी कभी याद रखना बेटा, हो अच्छा काम करने में परेशानियों का सामना तो करना पड़ता है। बुरा काम करने जाओगे ना तो कुछ पता नहीं लगेगा, लेकिन अगर कुछ अच्छी बात करने के लिए जाओगे तो निश्चित रूप से आपको अनेक सारी परेशानियों में से निकलना पड़ेगा। अब वो लड़का लंगड़ाते लंगड़ाते आगे जा रहा था, तो एक बुढ़िया माई बैठी हुई थी सामने, और उसके माथे के ऊपर एक टोपला, पोटला कह सकते हो, पोटला पड़ा हुआ था। उससे भी चला नहीं जा रहा था। इसके मन में फिर भाई की दया आ गई और उसने जाके माता जी से कहा कि माता राम, तुमसे नहीं उठा करके चलाया जा रहा है, तो लाओ ये पोटला मेरे को दे दो, मैं माथे पे रख लेता हूँ, चलो तुमको कहाँ चलना है मैं पहुँचा देता हूँ। तो बोला ठीक है बेटा चल। उसने वो पोटली उसके माथे के ऊपर रख दिया और उसका हाथ पकड़ के बुढ़िया चलने लगी। चलते 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 एक अच्छा ही शहर जैसा कुछ आ गया था, वहाँ पहुँचे तो रास्ते के अंदर चिंतन होता है और वो बुढ़िया बोलती है उससे कि भाई तू मेरा बोझा उठा के चल रहा है, लेकिन तेरे से एक बात कहना चाहती हूँ। तो उस लड़के ने कहा माताजी बोलिए, क्या बोलना चाहती हो? तने જોઈને મારા મનમાં એવું ભાવ આવી રહ્યો છે કે તું મારો દીકરો છે। લ તને જોઈને મારા મનમાં એવો ભાવ આવી રહ્યો છે કે તું મારો દીકરો છે। तो उस बालक ने कहा, उस लड़के ने कहा, तो माताजी कोई बात नहीं, मैं आपका बेटा ही हूँ, आपका सामान ढोके ही तो चल रहा हूँ, ले ही चल रहा हूँ ना, मैं भी आपको माताजी बोल रहा हूँ। बोला खाली बोलने की बात नहीं है, मैं तेरी माँ हूँ और तू मेरा बेटा है। बोला चलिए चलिए माताजी, देखिए सामने एक शहर जैसा कोई दिख रहा है, कोई आ रहा है, चल रहे हैं अपने लोग, वहीं चलते हैं, अभी तो चलिए, और मैं मान लेता हूँ कि आप मेरी माँ हैं, बस आप खुश रहिए। अब आगे जा रहे हैं, देखिए आगे जा रहे हैं, जाते जाते क्या होता है, कुछ घोड़े वाले लोग आए सामने से
उन घोड़े वालों को देख करके माता जी बोलती है, दीकरा तुम्हारो दीकरो छे ने? बोला हाँ। तो चल तने હું થોડા પૈસા આપું છું, આમાંથી એક ઘોડો લઈ આવની। તો એક સમસ્યાનો અંત થઈ જાય, હું બી ઘોડા ઉપર બેસી જઈશ, તું બી ઘોડા ઉપર બેસી જશે, તો તકલીફ ઓછી પડશે આપણને ચાલવામાં। બોલા આટલા પૈસા ક્યાંથી આવશે? બોલા હું આપું છું, આ પોટલી આપ। उसने पोटली में से माल निकाला, जाओ घोड़ा लेकर के आओ, बोलो उनसे कि ये घोड़ा हमको दे दो। उसने जाकर के और सौदा किया, पूछा कितने का घोड़ा? बोला इतने का घोड़ा है। बोला लो ये, वो माता जी बोल रही हैं कि घोड़ा हमको चाहिए, तो ले जाओ कोई बात नहीं। और उसने वो माल निकाला पोटली में से और दे दिया, और घोड़ा मिल गया। अब जब घोड़ा लेकर के वो आता है और माता जी को भी उस पर चढ़ाता है, खुद भी बैठता है, थोड़ी दूर आगे गया, थोड़ी दूर आगे गया तो एक छोटा बालक रोता हुआ आता है। और वो भी कहता है मेरे से चला नहीं जा रहा है, मेरे को घोड़े पर बैठा लो। तो माँ ने कहा बेटा ये तेरा छोटा भाई आया है, लो। पहले एक ही था, अब हाँ 2 बेटे हो गए। ये तेरा छोटा भाई आया है, तुम इसको घोड़े पर बैठा ले। उसने हाथ पकड़ के खींचा और घोड़े पर बैठा लिया। अब 3 हो गए। उस घोड़े को लेकर के और वो लोग गए तो एक शहर था, उसी में पहुँचे। वहाँ जाकर के माताजी ने कहा कि देख कोई एक अच्छी जगह ढूंढ जहाँ अपने को रहना है, अच्छी जगह ढूंढ, और पैसे की चिंता नहीं करना, मेरी पोटली में पैसा है, तू ढूंढ। और मैं तेरे को 2 लाल देती हूँ, यहाँ का जो राजा है उसके पास जाके बेच के आ जा। तो वो 2 लाल लेके गया और जाकर के बोलता है मैं व्यापारी का बेटा हूँ और मेरे पास में ये 2 लाल हैं, इसकी कीमत चाहिए। तो उसको तो बहुत पैसा मिल गया, उसमें तो भाड़े की खोली नहीं, आका मकान मिल गया। अब तो तीनों उस मकान में खूब अच्छी तरह से रहने लग गए। अब माता जी बोलती है देख वो राजा जो है ना वो शिकार करने को जाता है, तो उसके साथ दोस्ती बढ़ा, तू भी जाया कर साथ के अंदर और बोलना कि मैं व्यापारी का बेटा हूँ। और पैसा तो थे ही, बहुत माल था उनके पास, दुकान उकान भी ले लिया, जवाहरात की दुकान खोल दिया। अब मालदार था इसलिए राजा भी उसके साथ प्रभावित हुआ और बोलने में बहुत अच्छा था, वाक्छटा थी, साथ में रहने लगा और जाने लगा, तो दोस्ती भी हो गई उसके साथ में। राजा के पास में एक चमत्कार था, उसके बाद एक अंगूठी थी, और उस अंगूठी के अंदर वो जो बोल दे वो अंगूठी में से बोलने के साथ ही आया करता था। वो कह दे इस अंगूठी को कि मेरे को स्वर्ग से अप्सराएं चाहिए, तो अप्सराएं नाचने को आ जाती थी। वो कह दे कि मेरे को ये माल खाने को चाहिए, तो वो माल वो अंगूठी के कारण से उसके पास आ जाता। तो दोनों भाई आपस में विचार करने लगे कि राजा के पास में अंगूठी बहुत बढ़िया है, लेकिन ये अपने को थोड़ी देगा, ये तो बहुत संभाल के रखता है। एक दिन राजा कहने लगा देखो मैं आकाश मार्ग से घूम करके आता हूँ, उस अंगूठी के प्रभाव से, तो उड़ने लगा और आकाश मार्ग में जाने लगा। हुआ क्या, उसकी अंगूठी हाथ से छूट गई और वहाँ नदी एक बह रही थी, उसमें गिर गई। तो राजा भी धड़ाम से, वो तो चमत्कार किसका था, अंगूठी का था, राजा का तो नहीं था। अब वो नीचे आ गया, धड़ाम से गिर गया,
वो दोनों भाई दौड़ के गए और नदी के पास में से राजा को उठा करके बाहर निकाला। बोला राजा साहब ये क्या हो गया? बोला भाई जो होना था सो हो गया, लेकिन एक बात करो, अगर तुम, बहुत बड़ा इनाम मैं तुम्हारे को दूंगा। मेरी अंगूठी इसी नदी के अंदर गिर गई है और वही चमत्कारी अंगूठी थी मेरी, उसको निकाल के अगर तुम ला दो तो मैं अपनी लड़की का ब्याह कर दूंगा तुम्हारे साथ। लड़का कोई था नहीं उसके, एक लड़की थी, तो बोला मेरी लड़की का ब्याह कर दूंगा। तो छोटा भाई बोलता है अंगूठी तो मैं निकाल के ला सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे बड़े भाई के साथ में अपनी लड़की का ब्याह करना पड़ेगा। राजा ने कहा अगर तुम अंगूठी निकाल के ले आओगे तो मैं तुम्हारे बड़े भाई के साथ इसका विवाह कर दूंगा। वो लड़का कहा कि ठीक है मैं जाता हूँ। वो गया अंदर गोता मार के और अंगूठी लेके ढूंढ के आ गया। बोला राजा साहब ये आपकी अंगूठी लीजिए, आप वचन के अनुसार आप मेरे भाई बड़े भाई का ब्याह अपनी बेटी से करवाइए। बोला पक्का। अब राजा ने अपनी लड़की का ब्याह तो किया ही किया, क्योंकि लड़का कोई था नहीं, दहेज में सारा राज्य ही उस लड़के को भी दे दिया, सारा राज्य भी मिल गया। अब वो बुढ़िया माता जी बोलती है बेटा मेरे को तू जहाँ से लेके आया था वहाँ पहुँचा के आ जा, अब हम जाएंगे। मेरे को जहाँ से तूने लिया था वो पोटला उठाया था जहाँ से, तुम मेरे को वहाँ पहुँचा दे, वहीं मेरी पास में झोपड़ी। बोला माँ अब तो हमारे को राज्य मिला और तुम हमको छोड़ के जा रही। बोला नहीं नहीं हमारा मन नहीं, अब तुम हमको लेकर के चलो, हम जाएंगे। तुम्हारी मर्जी। बोला इसी घोड़े के ऊपर बैठेंगे। उसी घोड़े के ऊपर बैठे। तब वो लड़का जो छोटा भाई है वो भी बोलता है मैं भी साथ चलूँगा, तो वो भी साथ आ गया। अब नारायण जब उस स्थान के ऊपर पहुंचते हैं जहाँ से ये सब जुड़े थे, बेटा अब तुम्हारा हमारा साथ पूरा हुआ। माता जी बोलती हैं तुम्हारा हमारा साथ अब पूरा हो गया, जिस काम के लिए हम आए थे वो काम हमारा हो गया पूरा, अब हम तुमसे विदा लेंगे। तुम जाना, अपने माता पिता को लेना, वो धर्मात्मा नहीं है लेकिन हमारी बातें सुनने के बाद वो धर्मात्मा हो जाएंगे और तुम्हारे साथ रहेंगे और धर्म का कार्य करेंगे। अब तो तुम बड़े आदमी बन गए हो, संभाल करके माता पिता की सेवा करना। इस राजा ने कहा, अभी अभी जो राजा बना है, कि आखिर माँ तुम हो कौन? उस माँ ने जवाब दिया, मैं वही गाय हूँ जिसको तुम्हारा बाप डंडा मारा था और तुमने मेरे को खाने से रोका। फिर वो छोटा भाई भी बोलता है कि अब हम भी नहीं रहेंगे, अब हम भी जाएंगे, हमारा भी काम हो गया है। वो घोड़ा बोलता है हम भी खाली तुम्हारे लिए ही आए थे, अब हम जाएंगे। तब उसने कहा कि आप दोनों कौन हो? तब देखिए वो घोड़ा बोलता है मैं इच्छाधारी नाग हूं, तुमने धर्म की रक्षा के लिए मुझे अपना मांस खिलाया था, दे दिया था, धर्म नहीं छोड़ा तुमने, इसलिए हम तुम्हारा साथ देने आए। तब फिर उस लड़के से पूछा कि भैया तू कौन? बोला मैं वही मेंढक हूं, डेढ़ का, जिसको तुमने बचाया था इसके मुंह से और हमारी रक्षा की थी, मैं वही हूं। तुमने धर्म के कार्य को, धर्म के मार्ग को केवल एक ही बार सुना था,
श्रुत्वा धर्म विजानाति, बोलिए। श्रवण करने से तुमने धर्म के मार्ग के ऊपर अपनी प्रतिष्ठा किया और तुमने छोड़ा नहीं उसको। तुम्हें पीड़ा भी हुई, अपना मांस भी तुमको देना पड़ा, तो भी तुमने धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ा। संतों के मुंह से जो सुना उसको 100% पालन किया। आपने भी बताया हमल के तो छे, है ना। ખોટું નહીં લગાડતા કોઈ બી, હું તમારા ઉપર કોઈ કોમેન્ટ નથી પાસ કરતો, પણ તમને હું જણાવવા માગું છું કે જે સાંભળો એને કરવાની ચેષ્ટા 100% ન બી થાય તો થોડી ઘણી તો આપણા જીવનમાં ઉતારવી જોઈએ ને. ક્યારેક કોઈ ને કોઈ વસ્તુ ક્યાં કામ આવી જશે તમને ખબર પણ. હવે આપણને ખબર હતી કે આ ડોહી કોણ છે, હે, અથવા આ છોકરો દેડકો જ છે આપણને ખબર પડે. આ ઘોડો ઈચ્છાધારી નાગ થઈને અહીંયા આવી ગયો છે ને વેચાતો લેવામાં આવ્યો છે. धर्म का रहस्य बहुत ही गहन है, बहुत ही गहन है. इसलिए इस पहले सेंटेंस को पहले बोल लो. श्रुत्वा धर्म विजानाति, श्रुत्वा त्यजति दुर्मतिम. इसका व्याख्यान मैं बाद में करूँगा, पहले बोलो तो सही. श्रुत्वा त्यजति दुर्मतिम, श्रुत्वा ज्ञानम अवाप्नोति, श्रुत्वा मोक्ष मवाप्नुयात्, मवाप्नुयात्. श्रवण करके ही तुम धर्म के रहस्य को समझ सकते हो, जान सकते हो. श्रवण से तुम अपनी दुर्मति का भी त्याग कर सकते हो. श्रवण में बड़ी ताकत है, बड़ी ताकत है. और नारायण श्रवण करके ही तुम ज्ञानम अवाप्नोति, श्रवण से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है. और श्रवण से ही मोक्षम अवाप्नुयात्, श्रवण से ही तुम मुक्ति तक पहुंच सकते हो, मुक्ति की भी प्राप्ति कर सकते हो. तो पहला सेंटेंस मैंने आपको बताया श्रवण का. श्रुत्वा धर्म विजानाति, प्रत्यक्षम चक्षुषा दृष्ट्वा तत्र लोक प्रवर्तते, अप्रत्यक्षम ही सर्वत्र ज्ञात्वा श्रोत्रेण चेष्टते. प्रत्यक्ष को देख करके और फिर प्रवृत्त हो जाना तो बड़ी बात नहीं है, दिखाई दे रहा है. लेकिन जो तत्व अप्रत्यक्ष है उसको हम श्रवण के द्वारा ही जान सकते हैं और फिर उसमें प्रवृत्त हों तो वो बड़ी बात होती है, बड़ी बात होती है. तस्मात् श्रवणम एवादौ श्रुत्वा गुरु मुखात् बुधः. इसलिए गुरु मुख से पहले हमें श्रवण करना चाहिए. गुरु मुख से पहले श्रवण करना चाहिए. अच्छा, गुरुमुख क्यों कहा? क्योंकि गुरु ही ऐसे होते हैं जो कोई अपेक्षा न रखते हुए आपकी हित कामना करेंगे, आपके कल्याण की कामना करेंगे, आपके लिए अच्छा सोचेंगे, आपका भला सोचेंगे. वही तो गुरु पद है, वही तो गुरु की महत्ता है. इसलिए गुरुमुखात् श्रवणम, गुरु मुख से ही श्रवण करना चाहिए, श्रवण होना चाहिए. तुम तो नसीबदार हो, सारे के सारे लोग बैठे हो, सबके सब शिष्य हो मेरे. तो गुरु मुख से तुमको श्रवण करने का लाभ मिल रहा है. तो श्रुत्वा धर्म विजानाति, पहला सेंटेंस आपको मैंने बताया. श्रवण करने से धर्म का बोध होता है. दूसरा सेंटेंस है यहाँ पे, श्रुत्वा त्यजति दुर्मतिम. श्रवण करने से दुर्मति का भी त्याग हो जाता है. दुर्मति यानी दुर्बुद्धि. अभी घना बधा लोग एवा होय भाई,
एक श्लोक मेरे गुरुदेव बचपन में मुझे सिखाया करते थे, बहुत प्यारा श्लोक था। ऐसे लोग होते हैं गुणा दोषायन्ते, गुणों के अंदर दोष देख लेते हैं, गुणों के अंदर दोष देख लेते हैं। और एक ऐसे भी लोग होते हैं कि जो दोषों में भी गुण देख लेते हैं। दृष्टांत बहुत बढ़िया दिया है। मेघ जो है वो दोषों में गुण देख लेता है, दोषों से गुण करता है। समुद्र का खारा पानी पीता है लेकिन समाज को क्या देता है? बोलो, मीठा पानी। और जो लोग गुणों में दोष देख लेते हैं वो कैसे होते हैं? तो दृष्टांत दिया, सांप को कितना ही दूध पिलाओ वो क्या करता है? जहर ही उगलता है, विष वमन करता है, विष वमन करता है। फणिक क्षीरम पीत्वा त्यजति दुस्सहतरम गलम। ये बचपन में मुझे ये श्लोक सिखाया करते थे गुरुजी। इसलिए हमेशा बेटा दोषों में भी गुण देखने की चेष्टा रखना चाहिए। श्रुत्वा त्यजति दुर्मतिम, बचपन से गुरु मुख से सुना है और उसी श्रवण का जीवन में अनुभव करता हूँ मैं। कभी कभी गुरुदेव पास में बैठा लेते थे और बोलते थे, विद्या मैं तुझे हिमालय की तरह से दृढ़ संकल्पवान देखना चाहता हूँ, चंद्रमा की तरह शीतल देखना चाहता हूँ, सूर्य की तरह तेजस्वी देखना चाहता हूँ, समुद्र की तरह गंभीर देखना चाहता हूँ। तुम ऐसा बनना। ये बचपन में जब मैं 13 साल का घर छोड़ के आया था तब की बात बता रहा हूँ। बचपन से श्रवणजन्य संस्कार बनते गए बनते गए बनते गए। इसलिए श्रवण में बहुत बड़ी ताकत है नारायण, बहुत बड़ी ताकत है। श्रुत्वा बोलिए, त्यजति दुर्मतिम। एक गामड़ू હતું, એ ગામડામાં બધા ચોર રહેતા હતા। એ ગામડાનું નામ જ ચોરવાડ। બધા ચોર જ રહે એમાં। ડાકા મારવાનું, પેલા શું કે એ લોકોને જે આવે ચડ્ડી બનિયાનવાળા, દાળપાડું। તો એ દાળપાડુનું અને લૂંટેરાઓનું જ ગામ હતું, એમ સમજો ને તમે, ચોરનું જ ગામ હતું। નદીના કાંઠા ઉપર હતું પાછું। સંતોની એક મંડળી ફરતા ફરતા પેલા ગામમાં પહોંચી ગઈ અને ત્યારે શું દેવસેની એકાદશી આવી ગઈ હતી। દેવસેની એકાદશી સમજો ને, આપણે કહીએ છીએ ને દેવ સૂઈ ગયા, પહેલી એકાદશીના દિવસે। અને ત્યારથી શું થઈ જાય? ચાતુર્માસ લાગી જાય। ત્યારથી શું લાગે? ચાતુર્માસ। તો પેલા જે સંતો હતા એ લોકોએ વિચાર કરવા લાગ્યો, આજે દેવસેની એકાદશી આવી ગઈ છે અને નદી છે સામે જ, આપણે તો નદી પાર કરવાના નથી, ચાતુર્માસ પછી અહીંયા જ કરીએ, એ જ ગામમાં કરીએ। અને ગામ કોનું? તમે સમજી લો। એવા ગામમાં સંતોએ આવીને ડેરો નાખી દીધું। ગામવાળા લોકોએ મીટિંગ કરી। ગામવાળા લોકોએ
મીટિંગ કરી આપણે કોઈએ એ મહાત્માઓ પાસે જવાનું નહીં. ભલે આવી ગયા અને રોકાઈ ગયા તો રોકાય, પણ આપણે ત્યાં જવાનું નહીં. કેમ? એમના પાસે આપણે જશું તો એ કહેશે દારૂ છોડી દો, માંસ ખાવાનું છોડી દો, ચોરી કરવાનું છોડી દો, પેલો શું દાળ પાડવાનું છોડી દો, આ યારબાજી, આ વેશ્યાગીરીની આ બધા જે ધંધા છે આ બધા છોડી દો. આપણાથી કંઈ છૂટવાના નથી ભાઈ. આપણે પછી જવાની જરૂર જ શું છે ત્યાં? એટલે આપણે તો જવાના નથી. અને જે કોઈ વ્યક્તિ આપણામાંથી ત્યાં જશે તો એને આપણે દંડ મારશું. એટલે કોઈ જાય જ નહીં. હવે મહાત્મા લોકો તો બિચારા ત્યાં ધામો નાખી દીધું અને રહી ગયા. આજુબાજુના ગામવાળા લોકો આવે અને ખૂબ સંતોની સેવા કરે, સત્સંગનો ભી લાભ લે, પણ પેલા ગામના લોકો તો આવતા જ ન મળે, આવે જ નહીં. અને પહેલાંના જમાનામાં ચાતુર્માસ એટલે 4 મહિના. 4 મહિના પૂરા થવા આવ્યા અને પેલી દેવોત્થાપની એકાદશી એટલે જે દેવ ઉઠે તે એકાદશી આવી ગઈ. પણ માઈના લાલ અહીંયા ત્યાં તો આવ્યા જ નહીં જાય નહીં. એનાથી થયો શું કે આજુબાજુના જે ગામવાળાઓ છે એ લોકોમાં આ ગામવાળાઓની નિંદા થવા લાગી. લોકો તો કોઈનો મોઢો થોડી તમે બંધ કરી શકો. હા, તો એટલે ચર્ચા થવા લાગી. અરે સંતો ચાતુર્માસ કરી રહ્યા છે અને લોકો यहाँ સાંભળવા બી આવ્યા નથી ને કોઈ દિવસે સેવા પણ કરવા આવ્યા નથી. તો દેવોત્થાપની એકાદશીના દિવસે, દેવ ઉઠે તે એકાદશીના દિવસે પાછી મીટિંગ બોલાવી ગામના લોકોએ. પેલા ગામના ચોરવાડના લોકોએ પાછી મીટિંગ બોલાવી અને મીટિંગમાં પ્રસ્તાવ મૂક્યું કે ભાઈ આપણે આજ સુધી તો ન ગયા અને કોઈ સેવા ન કરી. હવે તે બધા જઈ રહ્યા છે તો જતાં જતાં કોઈક તો આપણામાંથી બી પહોંચો સેવા કરવા માટે. તો પછી વિચાર થયો કે ભાઈ કોણ જશે અને શું સેવા કરશે? તો આમાં જે ચોરોનું સરદાર હતો ને, દાળ પાડવાનું સરદાર, એ સરદારને બધાએ કીધું કે તું છે અમારામાં મોટો, એટલે તું જ જા અને તું સેવા કર. શું સેવા કરવાનું? તો એ મહાત્મા લોક જે ગામથી બીજા ગામમાં જઈ રહ્યા છે, આ ગામથી ત્યાં સુધી એ લોકોનું જે સામાન છે એ લઈ જવાની જવાબદારી चोरों के सरदार को सामान उठाने का प्रबंध सौंपा गया कि तुम सामान लेकर के और जाओगे. तब वो सरदार आया, आकर के हाथ जोड़ा, बोल भाई. बोला आज सुधी तो हमें कोई तुम्हारी सेवा न करी शक्या, पण आजे तमे जाओ छो तो एक तक अमने भी आपो. तो पहला सरदारे कहूँ, पहला महात्माओं कहूँ भाई तो तू शू सेवा करवा मांगे? बोले तमारो सामान उचकीने हूँ तमने ज्यां जाओ छो त्या गाम में पहोंचाड़ी आवीश. त्यारे महात्माओं विचार कर्यो, एकबीजाना सामे जोयुं. महात्माओं 4 महीने में तो कोई आया नहीं, आज पहली बार कोई हमारे पास आया है. इन्होंने अपना स्वभाव दिखाया, हमें अपना स्वभाव दिखाना चाहिए. जता जता आपने एना ऊपर कृपा करवी जोईए.
अपने को इस पर कृपा करनी चाहिए। देखिए महात्मा का हृदय। तो महात्मा ने कहा कि भाई ठीक है, हमारी एक शरियात है, तने मंजूर होय तो અમે તને અમારા સામાન્ય હાથ અડાવવા દઈશું, નહીં તો નહીં. પહેલો ચક્કરમાં પડી ગયો કે તો કહી દેશે કે આ છોડ ને તે છોડ, પછી આપણાથી તો આ છોડાય નહીં. કેવી રીતે આપણે કહેશું? છતાં પણ કાંઈ વાંધો નહીં, હવે બોલે છે તો જરા સાંભળી તો લઈએ હું કહે છે. तो सरदार ने कहा, चोरों के सरदार ने, बोले महात्मा क्या कहना चाहते हो? बोला हम ये कहना चाहते हैं तुम दारू पीते हो? बोला रोज पीऊँ छू, चाले ज नहीं. वांधो नहीं, तो पी, पर एक बात पर हमारी मान से तो हाथ लगाड़वा दईश. तो बोलो. सारा दिवस में एकादशी होय, महाशिवरात्रि होय, जन्माष्टमी होय, रामनवमी होय, एवा जे सारा पर्वो आवता होय ए दिवसे तू दारू नहीं पीतो. मंजूर छे तने? त्यारे पहला विचार कर्यो तो वर्ष में 2-4 दाड़ा तो आपणे एम पण थई जाय छे. तो कांई वांधो नहीं, ये तो सारी बात है. हाँ महात्माजी चालो मानी तमारी बात. तो बीजा महात्माए कीधुं कि भाई मारी भी एक शरियात है. तो पेलो कहे बधा एक साथ ज मळीने बोली दो नहीं, हूँ जुदा जुदा तमे बोल्या करो. तो पेला कीधुं नहीं भाई અમે જ બોલશું, અમારી રીતે બોલશું. तू मांस भी खाता होगा? बोला हाँ खाऊँ छूँ, चौक्कस खाऊँ छूँ, અને બધા જ જીવોનું ખાઉં છું, કોઈને છોડતો નથી. તો પેલા બીજા મહાત્માએ કીધું વાંધો નહીં, તું ખા, પણ આજે એક વાત તારે કરવી પડશે. કોઈ પણ એક પક્ષીનું તું આજે સંકલ્પ કર કે એનું માંસ હું નહીં ખાઈશ. પહેલો વિચાર કરવા લાગ્યો કે હવે કોનું નહીં ખાવાનું. છેલ્લે વિચાર કરીને કહે છે હા ચાલો માની લીધી તમારી વાત, કાગડાનું માંસ નહીં ખાઈશું હું. कौवे का मांस मैं नहीं खाऊंगा. बोला बात पक्की? बोला हाँ पक्की. હવે ત્રીજા મહાત્માએ કીધું કે મારી બી એક વાત તારે માનવી પડશે. તો પેલો કહે છે કે હવે તમે બી બોલી દો હું છે. બોલા 5 જે સ્ત્રીઓ છે એ માતૃ સમાન હોય છે. गुरु पत्नी, राजपत्नी, अपनी पत्नी की माता, खुद की माता और ब्राह्मण की पत्नी माता होती है. इनके साथ में कभी तुम कोई बुरी दृष्टि से नहीं देखोगे. तो पहले कहे कि आ तो हमें भी विचारीए छे आ बात तो ठीक है बराबर है, चलो तुम्हारी भी बात में मानी लीधी. હવે તો ચાલો. તો પેલા ચોથા ઊભા હતા. તો પેલા ચોથા મહાત્માએ કીધું હું બી તો છું ને ભા, તું મારો બી તો સામાન લેશે ને, હું તો ત્યારે જ હાથ લગાડવા દઈશ, મારી બી તું વાત માનશે. તો પહેલો તો ચક્કરમાં પડી ગયો કે તો એક એક કરીને મારી પાછળ જ પડી રહ્યા છે, અને આ બધાએ મને મળીને આ શું કે આગળ કરી દીધું. ચોરવાડના લોકોએ બધાએ મને જ આગળ કરી દીધું, દીકરાઓ બધા પાછળ રહી ગયા છે. बलि का बकरा मेरे को ही बना दिया है. अच्छा कोई बात नहीं है. बोलो महात्मा जी તમે બી કહી દો.
તમે શું કહેવા માંગો છો? નહીં, હું તો કાંઈ વિશેષ નથી કહેવા માંગતો તને. જે મહાત્માઓએ તને પ્રતિજ્ઞા કરાવડાવી એના ઉપર તું અટલ રહેજે. કોઈ પણ સંજોગમાં તારી વાતને જવા દેવાનું નહીં. ભલા તો મંજૂર કરીને મેં, પણ તું સાંભળ તો ખરું, મારી એક વાત તો સાંભળ. તું ચોરી કરવા તો જવાનું જ છે. બોલા હા, હું તો ચોક્કસ જઈશ, આ તો મારો ધંધો છે, એ કેવી રીતે છોડીશ? કાંઈ વાંધો નહીં, તું ચોરી કરવા બી જજે, પણ એક વાતનું ધ્યાન રાખજે, એક વાતની મારી વાત માનજે કે જેના ઘરનું તું મીઠું ખાઈ લે, નમક, જેના ઘરનું તું મીઠું ખાઈ લે, નમક ખાઈ લે, એના ઘરમાં ચોરી કરતો नहीं तो नमक हराम हो जाएगा. नहीं तो तू नमक हराम થઈ જશે. બોલો મંજૂર? હવે બોલો હવે કાંઈ વાંધો નહીં, ઉપાડ સામાન ઉપાડ. હવે પેલો ચોરોનું સરદાર ડાકુ મહાત્માઓનો સામાન લઈને જાય છે આગળ, અને જે ગામમાં એ મહાત્માઓ પધારવાના હતા ત્યાં પહોંચાડીને પાછો આવે છે. પાછો જ્યારે આવ્યો ત્યારે બધા મળી ગઈને એને પૂછે, હું કીધું તને, હું કીધું? એ તો બધામાં હોય જ ને આકર્ષણ. તો એ તો ભાઈ તું જઈને આવ્યો છે તો જરૂર તને કાંઈ ને કાંઈક તો વાત કરી જશે. તો એ બધી વાત એને આવીને ચોખ્ખી ચોખ્ખી સંભળાવી દીધી કે એવી રીતે મને કહ્યું ને, મેં હા પાડી દીધી છે. એમને ચોરી કરવાની ના નથી પાડી, કરો, પણ જેનું નમક ખાઓ, મીઠું ખાઓ, એને ત્યાં ચોરી નહીં કરવાની. બીજું એમને ખાવા પીવાની બી કોઈ ના નહીં પાડી. કીધું એક કોઈ પણ પક્ષીનું માંસ છોડી દો, તો મેં કહી દીધું કે હું કાગડાનું માંસ હું નહીં ખાઈશ. પછી ઓર શું કીધું? તો આ સ્ત્રીઓ માતા સમાન હોય છે, એની તરફ બધી દૃષ્ટિથી તારે જોવાનું નહીં. તો બરાબર છે. આ બધી વાતો થઈ ગઈ, અને હું રહીશ નક્કી એના ઉપર, સિદ્ધાંત ઉપર હું ચાલીશ. શ્રુત્વા બોલો त्यजति दुर्मतिम. पहला मैंने आपको सुनाया श्रुत्वा धर्म विजानाति. अच्छा, आज तो टाइम વધારે થઈ ગયો, તો આગળની વાત આપણે આવતીકાલે રાખી, ચાલશે ને? आगे की बात कल सुना देंगे, क्योंकि अभी इसका फल तो अब आएगा, वो कल सुनाएंगे, फल कल देंगे. इतना ही समझो कि श्रवण करने से व्यक्ति अपनी दुर्मति का त्याग कर देता है. ये डाकू, ये चोर उन महात्माओं के संग में रहा, उनसे श्रवण किया, तो वह दुर्मति का त्याग करता है. श्रवण में बहुत बड़ी शक्ति है. आगे कहेंगे श्रुत्वा ज्ञानमवाप्नोति. श्रवण करके ज्ञान को प्राप्त होता है व्यक्ति, और श्रुत्वा मोक्षमवाप्नुयात्. मोक्ष तक भी श्रवण करके आप पहुंच सकते हैं. ये पहला जो साधन है, श्रोतव्य है, कीर्तितव्य है, मंतव्यश्च महेश्वर है, उनमें पहला श्रवण की व्याख्या मैं आपको सुना रहा हूँ. बाकी आगे की बात कल करेंगे. हरि ओम तत्सत. पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. आरतिक्यम कुर्यात्. आरती की तो तैयारी दिख ही नहीं रही आज. आ जाइए भाई, आ जाइए फटाफट. यजमान लोग को आ जाओ, आरती करो. मोहन भाई कुर्सी पर बैठ जाया कर. हाँ, कुर्सी पर बैठ जाया.
ओमिदगुं हविः प्रजनं मे असुरसवीरगुं कर्पूर गौरम कर्पूर जला लो कर्पूर जला वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि थोड़ा सा नाना सुगंधि पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च बोलिए शिव महापुराण की आज के आनंद की नमः पार्वती पतये हर